we got pretty badly recontest होगा तो can we talk about that कि क्या हुआ कल? तो शुरुआत में 5 से 10 मिनट के अंदर ये दिक्कत हुई जहाँ Okay. पे people could not access the problems in the contest. What was the coach chef story अगर हम brief में उसके बारे में बात कर पाए तो? Bhavin and him came into the room and सबको बोला कि यार कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर तुम सॉल्व करोगे तो पिज्जा मिलेगी, और पिज्जा के लिए इंजीनियर्स उस वक्त कुछ भी करते थे, स्पेशली कॉलेज अभी भी कुछ भेज लेंगे. I've heard him say in a podcast that anything that he has to repeat over 3 times in his life usually has a protocol document. Have you been handed a bunch of protocol documents? No, I have not been handed a bunch of protocol documents, but I know that he is that kind of a person. Gaurav Munjal used to be your reportee, right? हमने एक छोटा सा इवेंट किया था in the canteen of Directai. Okay. And he got the free charge CEO, he got Haptica CEO, 3 people at that time when he was a fresher. It got acquired by an academy in September 2020, right? And then you, I think, continued working there for quite some time, and it was being run as a non-profit, and I was not very happy with the fact that a non-profit can be sold. तो बहुत important है कि मैं सिर्फ ये ना measure करूँ कि यार revenue कितना आ रहा है. Between me and the founder, so the CEO of an academy, we did not get along very well, I think. उसका brand ही था an academy, yeah. Right? And what I bring to the table is lot of my collaboration with colleges. Lot of academy, right? P versus WebDev is a very common debate in answered by Coach Chef's ex-CEO. Hello everyone. First of all, thank you so much for your love and your feedback in our previous and the first podcast. Comments पढ़ रहा था मैं. Some of them were constructive criticism और कुछ काफ़ी रंगीले थे. एक चीज़ जो बार बार आई वो ये थी कि मैं राज, जो हमारे गेस्ट थे, को काफ़ी इंटरप्ट कर रहा था. थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको. नंबर 1, ये मेरा पहला पॉडकास्ट था वेयर आई वॉज होस्टिंग. गेस्ट्स की तरह काफ़ी पॉडकास्ट्स किए थे पहले, बट हैड नेवर होस्टेड बिफोर. नंबर 2, Striver and I know each other for more than 4 years, even before he started YouTube. So, although I understand the perspective of the audience, but मेरे लिए it was more like a friendly conversation than an interview. Having said that, rest assured, it's not gonna happen moving forward. Even आज के episode में you'll hopefully notice कि I've tried to improve in that aspect. Would love to hear more of your feedback, so please keep it coming, बस थोड़ा civil language में. In this episode, we have Anoop Kalbalia with us. अगर आप टेक डोमेन से हैं तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आपने कोच शेफ का नाम तो सुना ही होगा. अनूप ने 2010 से लेके 11 साल तक कोच शेफ को लीड किया. इस एपिसोड में वी विल टॉक अबाउट द कोच शेफ स्टोरी, ICPC, विच इज़ अ पॉपुलर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, द वेरी फेमस DSA वर्सेस डेव क्वेश्चन, एंड अदर इनसाइट्स फ्रॉम अनूप्स होल जर्नी. If you are liking the kind of content that we are posting, please consider subscribing. थोड़े episodes देखो, अगर नहीं मज़ा आए तो यार कर देना unsubscribe. Enjoy the conversation. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. ये हम तीसरा शूट कर रहे हैं आपके साथ. आपको बताया मैंने, बाहर की 2 ऑलरेडी शूट कर चुके हैं. हाउ आर यू फीलिंग? Thank you for having me on the podcast. I'm not sure if it's a great day to have a podcast, but yeah, I feel okay. ये आपका पहला पॉडकास्ट है इन अ सेटअप एंड ऑल, लाइक, या फिर यू हैव हैड डन? नहीं यार, पहला है. अच्छा. इतनी इंपॉर्टेंस किसी ने नहीं दी पहले मुझे जितनी अभी मिल रही है. ठीक है. So, हमारे पॉडकास्ट का नाम ऑन पॉइंट है, AKA द OP पॉडकास्ट. तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं. बिल्कुल, आ जाओ. कल ICPC 2025 का ऑनलाइन राउंड था, राइट? तो अनूप का मैसेज आया मुझे, कोट, वी गॉट प्रीटी बैडली रिकॉन्टेस्ट होगा. तो कैन वी टॉक अबाउट दैट, क्या हुआ कल? सारी दुनिया को पता है, ऑफ कोर्स. उससे पहले वन मोर थिंग, देयर मे बी सम पीपल जिनको ICPC के बारे में ना पता हो, तो इफ यू कैन in one line explain कि ICPC क्या है, and then we'll talk about yesterday. Okay, yeah. So ICPC is like the International Collegiate Programming Competition. It's the most prestigious programming competition in the world. It's like the Olympics of programming for college-going students. Right. हर साल होता है, 40 साल से हो रहा है. Right. And
काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, करीब 60-70 हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। और हर कंट्री में अलग अलग रीजनल्स होते हैं, जो रीजन्स में बेस्ट टीम्स होती हैं वो फाइनल्स में जाती हैं। करेक्ट। और फाइनल्स में करीब 120-40 के आसपास टीम्स आती हैं, एंड देन द टॉप टीम्स विन। 120-140 टीम्स का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 500 पीपल कम, राइट? 3 लोगों की एक टीम होती है, करीब 400-450 के आसपास लोग आते हैं। So yesterday was the first round, right? Yesterday was the first round for Indian regionals. Correct. तो इंडिया में जैसे 3 साइट्स होती हैं, इन 3 साइट्स में रीजनल्स थे। इंडिया की साइट्स हैं, कानपुर की एक साइट है जो कानपुर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, दूसरी साइट अमृतापुरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वो करते हैं, और तीसरी साइट IITMD चेन्नई है, वो करते हैं। तो उनका ऑनलाइन कॉन्टेस्ट था, राइट? सो दिस ईयर ICPC decided to not do it on any third party platform, because ICPC Global generally wants कि ये contest जो है ये किसी third party platform के साथ ना हो. They were also probably not very happy when it used to happen on CodeChef, and it feels like as if somebody else is doing the ICPC has been taken over by CodeChef. मतलब ऐसा synonymous हो गया था ICPC और CodeChef काफ़ी लोगों के लिए, which probably ICPC did not like. So I took a break. मैं 3 साल कुछ और कर रहा था. I was working with Navgurukul and had taken a break. Then ICPC के जो regional director है फाल्गुनी sir, he reached out to me. Anup, will you be able to help in something? तो मेरा तो था ही emotional connect. मैंने बोला हाँ बिल्कुल. I jumped into it. बिल्कुल. And then तो फिर हमने decide किया कि हम DomJudge का platform जो है, जो open source है, जो ICPC World Finals भी यूज करता है for conducting the finals. So just to be sure, ICPC World Finals has always been happening on their own platform and not on any third party platform. Not their own platform. So this is on open source platform usually. Okay. So it has always been happening on DomJudge and PC Square. However, there is another platform called Catis. All right. Which is started by I think UTH University है स्विट्जरलैंड में. All right. They own उनके किसी प्रोफेसर ने बनाया है Catis. Okay. अब उसको थर्ड पार्टी बोल सकते कि नहीं बोल सकते, दैट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन, बट दैट्स टेक्निकली मुझे तो लगता है वो भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म ही है. ओके, बट लाइक वर्ल्ड फाइनल्स हैज बीन हैपनिंग इन सच अ वे व्हिच प्रोबेबली आईसीपीसी इज नॉट वेरी अनहैप्पी अबाउट. या मतलब वर्ल्ड फाइनल्स पे इट इज ओके, बट इंडिया लेवल पे यू आर सेइंग कि इट हैज ऑलवेज बीन द केस कि कोडशेफ पे ही हो रहा है, फिर कोडल्स पे हो रहा है. हाँ, मतलब थर्ड पार्टी को कंट्रोल उतना नहीं देना था. दे वांटेड टू काइंड ऑफ हैव समथिंग ऑन देयर ओन डोमेन एंड लार्जर कंट्रोल ओवर हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. So sir reached out to me and I was like हाँ चलो करते हैं सर, क्या दिक्कत है. And then हमने DomJudge सीखा, हमने DomJudge इंस्टॉल करा, हमने DomJudge स्केल करने की कोशिश करी, परफॉर्मेंस टेस्ट किए. 2 महीने से हमने काफ़ी मेहनत करी उस पर. राइट. एंड टेस्ट जो भी हमने करे वो सारे they were fine, they were good. मतलब I knew from my CodeChef days, ऐसा नहीं है कि CodeChef में हम काफ़ी स्मूथली चीज़ें करते थे, चीज़ें वहाँ भी बहुत फटी है और फट के ही हमने सीखा है. बट आई थॉट सीख लिया है, इनफ सीख लिया है, अब कुछ उतना नहीं फटेगा. बट देन दिस कल कॉन्टेस्ट था और चीज़ें बिल्कुल मुझे मेरे 10 साल पुराने वाली बात CodeChef में याद आ गई जब हम पहला कॉन्टेस्ट होस्ट कर रहे थे. थोड़ा स्केल की बात कर सकते हैं बिफोर गेटिंग इनटू व्हाट वेंट रॉन्ग कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे. हाँ, सो देयर वर 3080 टीम्स हु वर पार्टिसिपेटिंग. ईच टीम में 3 लोग, तो करीब 9,500 लोग थे. करेक्ट. Which wasn't the highest ever actually. 2019 I remember there were 4,400 teams which participated. So but it was still a big number. No, but let's say there are around 4,000 teams, right? अभी 3,800 बोला ना आपने? 3,080. 3,000 मान लें. 3,100 के आसपास टीम्स थी. तो number of systems on which this was running were 3,000 or were they 9,000? No, they could be 9,000. अच्छा, तो because it's online, तो we don't control कि कितने सिस्टम में होंगे. तो allowed team logins were allowed for a particular team. Yes, is what you are saying. yes, that was allowed. तो 9,000 टीम आई शुरुआत तो ठीक. 9,000 सॉरी इंडिविजुअल्स आए. तो शुरू में जनरली स्पाइक काफ़ी, कोई भी शॉर्ट कॉन्टेस्ट, इफ एनीबडी हैज़ रन अ शॉर्ट कॉन्टेस्ट और बीन अ पार्ट ऑफ शॉर्ट कॉन्टेस्ट, तो उनको पता होता है कि शुरू में ट्रैफिक का स्पाइक होता है जब साइट्स यूजुअली थोड़ी डाउन जाती है. कॉन्करेंट यूजर्स बहुत ज़्यादा कॉन्करेंट यूजर्स एक साथ लॉग इन करते हैं तो सेशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं. एंड वो भी रिफ्रेश करते रहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स पहले देखनी होती है, सबसे पहले सबमिशन करना होता है, तो जनरली लोड भी काफ़ी आ जाता है. तो जनरली वेबसाइट्स जो हैंडल करती है वो कैश वेश काफ़ी इंप्लीमेंट करके रखती हैं ताकि वहाँ से आप डेटा दे दो एंड ऑल ऑफ दैट. ये लोड हमने रेप्लिकेट नहीं किया था हमारे टेस्टिंग में. तो शुरुआत में
5 से 10 मिनट के अंदर ये दिक्कत हुई जहाँ Okay. पे पीपल कुड नॉट एक्सेस द प्रॉब्लम्स इन द कॉन्टेस्ट अरीना. एंड फिर ऑब्वियसली वी केम इनटू पैनिक मोड, हमने डीबग करना शुरू किया एंड वी सॉ द MySQL का कैपेसिटी मैंने percentage has gone 100, and once MySQL reaches 100 you can't bring it down like immediately. You have to give it either a cooling off period or you need to disconnect the requests coming into it. Or at that time you are in a dilemma, right? Whether you give small amount of bad experience to the user versus you fix it that point in time and take a little bit of break and then Right. so and nobody at that time wants to give that small amount of bad experience to the user. लगता है कि चलो थोड़ा सा इस पे टच कर सकते हैं कि डिलेमा स्मॉल ऑफ अमाउंट ऑफ बैड एक्सपीरियंस से आपका क्या मतलब है वर्सेस दूसरा क्या है. सो लाइक बोल दो कि साइट डाउन है, राइट, ब्रेक ले लो, सर्वर को अपग्रेड कर लो ऑलराइट, और मैंने रीस्टार्ट कर लो एंड दिस विल upgrade टेक करके अप्रॉक्सिमेटली 5 to 10 minutes और फिर चालू कर दो. ऑलराइट, गॉट इट. तो So- वो स्टार्ट टाइम ही एक तरीके से कॉन्टेस्ट का हाँ. आपने फिर लेट्स से इट वाज हैपनिंग एट 8 लेट्स से नहीं बट तो- थोड़ा अनफेयर हो जाता है कॉन्टेस्ट, क्योंकि कॉन्टेस्ट तो चालू हो चुका था, कुछ लोगों कुछ ने टीम्स प्रॉब्लम के देख पास लिया प्रॉब्लम्स होगा. देख लिया होगा, करेक्ट. तो उनको ज़्यादा टाइम मिल गया, जिन्होंने नहीं देखा उनको कम टाइम मिल गया, Right. तो अनफेयर तो हो ही गया. और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि कोई हाँ. नॉर्मल सा कॉन्टेस्ट है जिसमें कुछ बहुत- स्टेक्स नहीं है. हाँ, इट ये इज तो लाइक हाई स्टेक. वेरी हाई स्टेक कंपटीशन. Contest. लोग एकदम सालों तक 2-2 साल प्रिपेयर Correct. करते हैं फॉर गेटिंग अ चांस टू गो टू जस्ट द टू ऑन साइट. क्लैरिफाई, अगर कोई हाँ. आईसीपीसी के वर्ल्ड फाइनल्स पे पहुंच जाता है हाँ तो इट इज लाइक you get an entry to at least give an interview in any of the big tech companies. I would even go हाँ as further as saying कि like selection भी हो जाता है in most of the हाँ, big हाँ, tech companies. मतलब- Interview तो मिल ही जाता है बिल्कुल. but when you have that skill level तो selection भी हो ही हाँ. जाएगा. So stakes were very high, and lot of students had really invested a lot of time, energy, and everything to prepare for it. कल आए थे और लोगों को लाने के लिए भी काफ़ी मैंने ऐसा भी नहीं था कि लोग ऐसे ही आ गए थे, मतलब we also did a lot of put a lot of effort to bring a lot of people as well. Alright. हाँ, थोड़ी अवेयरनेस पे भी काफ़ी काम किया था and all of that. Okay. So yeah, the load went up and we couldn't really handle it. बीच में हमने थोड़ा फिक्स किया, so we stopped a few screens जहाँ पे ज़्यादा MySQL कंज्यूम करते थे उनकी क्वेरीज. जैसे स्कोर बोर्ड काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो स्कोर बोर्ड हमने थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया. Okay. तो इट वाज रनिंग फाइन फॉर अराउंड एन आवर. Okay. तो सैलवेज हो गया था, लेकिन कॉन्टेस्ट 6 बजे शुरू हुआ था, 8:30 बजे खत्म होने वाला था. Alright. 7:56 पे we saw the spike in MySQL again and we couldn't figure out this time कि क्यों. स्टार्टिंग में हुआ, चलो उसको किसी न किसी तरीके से हाँ. fixed it as soon as you could. हाँ, You decided that route, right? आपने बोला ना 2 routes होते हैं. हमने नहीं MySQL चालू किया, हमने सिर्फ कुछ लिंक्स स्टॉप कर दिए. आपने रीस्टार्ट नहीं किया. Restart नहीं किया. You pause the scoreboard ताकि वहाँ पे Yes. कोई ना जाए, but yet it is not stopping people to read the problem and submit. Yeah. They can still do that so Yeah. that थोड़ा लोड कम हो जाए. Yeah. That way you hacky fix आपने कुछ हाँ, कर दिया. और वो चल गया, 1 घंटा मतलब चल गया. 1.5 घंटे चल गए. 1-1.5 घंटा चल गया. Alright, then हाँ. 7:56 के आसपास आप बोल रहे हो? 7:56 के आसपास we saw the MySQL go up to 100% again and without the scoreboard getting enabled or anything, and we just couldn't figure out why. And sorry to interrupt you, but the scoreboard is still disabled. still disabled. Okay. So either there was a lot of traffic or there was a lot of some activity which अभी टाइम नहीं मिला logs analyze करने का. अभी तो हम decide कर रहे हैं कि how we can reconduct the test and on what platform. So all of that discussions are going on. By the time I think this podcast will be released, we will obviously know कि कब क्या होने वाला है. But yeah, now the solution हाँ. that has happened is कि आप दोबारा से हम contest को recontest कर रहे हैं. conduct करोगे. हाँ. और उसके लिए I think a lot of effort will go on, right? Because अब आपको problems भी दोबारा set प्रॉब्लम्स करनी दोबारा पड़ेगी. बनानी है. Right. और हमें ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म तो अब हम शायद एग्जिस्टिंग वाला ही थर्ड पार्टी ही यूज करेंगे, बिकॉज दैट इज द मोर स्टेबल वे टू गो. राइट नाउ वी कांट टेक अ रिस्क अगेन विद सो मेनी स्टूडेंट्स. And definitely have to make sure कि इस टाइम ऐसा कुछ ना हो. हाँ. So yeah, that's what it is. All right. काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट स्टूडेंट्स को, उससे ज़्यादा आई थिंक आप काफ़ी स्ट्रेस में रहे होगे अराउंड इन दैट होल फेज, राइट? हाँ, मतलब आई हैव, ऐसा नहीं कि हम पहली बार ऐसा कर रहे थे. वी हैव गॉन थ्रू दिस इन द पास्ट, बट दिस टाइम इट वाज वेरी डिफरेंट बिकॉज जो टीम थी वो वॉलंटियर्स थे. पहले जब हम कोडशिप का हिस्सा थे और जब हम करते थे, ऐसा नहीं है कि हमने ये फकअप पहले किया नहीं है. हमने किया है, बट देयर वर डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर सिटिंग एट द सेम प्लेस. तो काफ़ी सारा जो स्ट्रेस है वो शेयर हो जाता है.
काफ़ी सारा जो लगता है तो बट this seemed more personal. I don't know why, but probably because I was getting back into the community after a long time. Okay. And फिर लगा कि यार ये चीज़ें तो फिक्स कर लेनी चाहिए थी, एक फायरवॉल लगा लेना चाहिए था. एक बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते थे जो ओवरसाइट में चला गया. There were too many things happening together. Yeah. So all the power to you. अब जब recontest हो, I hope it is it does not face these problems and all, and hopefully you go through that in a positive way. Yeah, thank you. Hopefully things अब तो खैर I think things will get better. Right. Fingers crossed. Let's see. Yeah. So I will come back to ICPC. All right. In some time. Sure. And I know that you are a big, kind of cheerleader of people preparing for ICPC, participating in ICPC, and India getting a medal in ICPC is what you would like to. So we'll come back to that. Beginning, I'd like to touch upon like your journey a little bit from CodeChef. I think you had been running CodeChef since 2010, right? If I'm not wrong. 2009, yeah. 9-ish. 10, all right. And then it got acquired by Unacademy in September 2020, right? And then you, I think, continued working there for quite some time and 8 months, right? CodeChef co-lead karte hue and also handling the competitive programming category of Unacademy, if I'm not wrong, right? I think there you directly reported to the CEO as well, if I'm not wrong. Then I think you moved out of the community and all within 8-9 months, as you are, kind of saying, like, how was the whole transition? Like, why is it that you moved out? And, if we can talk a bit around that. Of course, we can talk about it. One thing I want to correct, I was not running CodeChef. I was leading the team there. But maybe wrong choice of words. CodeChef was being run by DirectEye, and I was helping DirectEye to run CodeChef. I think CodeChef was acquired by Unacademy in 2020 June. That's how we became a part of Unacademy. Obviously, I was not very happy with the whole acquisition to start with. And then there were some philosophical differences in terms of how CodeChef was being run till that point in time. It was being run as a non-profit, and ideally, I was not very happy with the fact that a non-profit can be sold, or but it was not really portrayed as something being sold. It was more of a takeover, is what was kind of told. Yeah, but takeover means like acquire. It was change of custodianship, is what was right. all communicated all the time. All right. So there was no monetary transaction, is what was told. Maybe if there is something else that was different. Okay, so you are saying that the communication was in that way that nothing will change. Like intentions will still because DirectEye के direct businesses में education was not fitting in. And Bhavin was part of board of director of Unacademy as well. He was an advisor or something. And I think investor भी हाँ investor भी है plus director में भी था शायद. Okay. है शायद. And so it fitted more better into Unacademy because Unacademy was an education company. Correct. So that was the reason why it happened. Yet I was not very comfortable with the whole idea of moving in a very for-profit kind of a setup, because that's not how we operated in CodeChef. We were run very frugally. We went to colleges. The whole idea was just to improve the problem-solving ability and awareness among Indian programmers. Now probably we did not know what was in store for us. However, I did overcome my disappointment. It was bang in the middle of pandemic, and it was not a great time for me to kind of leave because pandemic ke beech mein, it would probably be easier for me to leave, but there will be a lot of other people, right? If I leave, a lot of other people will leave, and it was not a great time at that for anybody to do that. So we decided, okay, fine, let's see. अभी तक frugally काम किया है, अब पैसे आएंगे, how we can run with a lot of money at our disposal. And I think it was a very very interesting journey for CodeChef itself. Suddenly, from not having anything to spend, now suddenly I had a lot of cash at hand where I could hire
and a lot of people whom I knew were extremely committed to education, who were extremely committed to computer science education, and tell them, dude, तू तेरा गूगल का जॉब छोड़ यहाँ पे आ, पढ़ा, उतना ही पे कर देंगे, उतना ही पे कर देंगे, Correct. है ना? which was something very liberating. मतलब पहले मैं हमेशा मांगता था कि यार थोड़ा टाइम दे दे, वॉलंटियरिंग करते, और लोग खुशी से आते थे. मतलब बहुत कोडशेफ मैं चलाया इसीलिए, दैट्स आई डोंट एग्री, बिकॉज कोडशेफ को काफ़ी कम्युनिटी ने हेल्प किया. Codeship became what it became because huge number of people from the community came and volunteered for workshops, for training other folks, knowledge impart, the whole community on Discord. It's all run for free, right? Now suddenly I could like reach out to you. I could reach out to so many people and say, dude, come and teach. And I think I learned a lot in that whole 8 months कि monetize कैसे करते हैं, पैसे कैसे आते हैं. Right, I am a testament to that I was earning, if not more, as much as I was earning in Google by just teaching part time in Unacademy / Codeshef. So we launched a competitive programming course there, which I was very proud of, to be honest. Not because सिर्फ FANG companies के बच्चे पढ़ा रहे थे आके वहाँ, but also because जो पढ़ा रहे थे वो काफ़ी passionate थे पढ़ाने के लिए. And I think it was a very interesting experiment for me to mix pedagogy with computer science education. Now, lot of people may think कि, और बहुत सारी ऐसे मैंने देखी भी थी initiatives जहाँ पे काफ़ी कोर्सेस आजकल भी बिक रहे हैं, पहले भी बिकते थे कि FANG का बंदा हमने भी बेचे. मतलब ऐसा नहीं है कि हमने यूज़ नहीं किया FANG कि ये एक्स गूगलर है, पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है. बट काफ़ी फोकस हमने ये दिया लर्नेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट पे दिया कि व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ अ स्टूडेंट. एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि वी ब्रॉट सम पीपल हु वर गुड एट पेडागोजी. तो देयर इज एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड टीच फॉर इंडिया, जिससे मैंने ये शब्द सीखा कि पेडागोजी क्या होता है, पेडागोजी होती क्या है. क्योंकि काफ़ी दिन जब हम कोडशेफ चला रहे थे तो हम समझते थे कि हम एजुकेशन क्या होती है पेडागोजी, पढ़ाई की पढ़ाई, मतलब कैसे पढ़ाया जाता है, राइट, अ सब्जेक्ट विच टीचेस यू हाउ टू टीच. यहाँ से मुझे सीखने को मिला कि एजुकेशन में अगर मैं कोर्स बेचना है मुझे, मतलब अगर पढ़ाना है किसी को बेसिकली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सिर्फ ये ना मेजर करूं कि यार रेवेन्यू कितना आ रहा है, यार मतलब उस बच्चे की सिर्फ जॉब लगी कि नहीं लगी. मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि लर्निंग आउटकम बच्चों का सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. तो जब तुम लोग आए थे, तो मुझे पता नहीं तुझे याद है कि नहीं, आप लोग जब क्लास लेते थे, आपकी हर क्लास का एक ऑब्जर्वर था, और वो ऑब्जर्वर जो है वो एक TFI का फेलो हुआ करता था, उनको हमने हायर किया था. 1 महीने में एक बार मीटिंग भी हुआ करती थी, और एक महीने में एक बार मीटिंग भी हुआ करती थी कि क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं. तो काफ़ी सारे लोगों ने जो क्लास लेते थे, ये उनको बहुत एतराज़ था इस बात से कि यार आता तो इनको कुछ है नहीं, अब ना DSA का D आता है, ना कोडिंग का C आता है, और ये हमारी क्लास ऑब्जर्व करके हमें फीडबैक दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा पढ़ना चाहिए, तुम्हारे बोर्ड का ये ऐसा होना चाहिए, तुमने लिखना, बोर्ड कवरेज इतनी होनी चाहिए, है ना, तुम्हें इतना रुकना चाहिए, तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, इंटरेक्टिव बनाना चाहिए. तो मेरे लिए दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ वी आर एसोसिएटेड विद समथिंग, वी ब्रिंग द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग टुगेदर. एंड अगर कोई बच्चा पैसे दे रहा है, मुझे तो अभी भी लगता है एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, बट अगर कोई बच्चा पैसे दे रहा है तो उसको उसका वर्थ तो मिलना चाहिए. एंड जब तक अगर वो नहीं सीख के जा रहा है, then it's not worth it. मुझे लगा था Unacademy में काफ़ी वो अचीव किया था with that particular course, जहाँ पे बच्चे सीख रहे थे. So that was a good experience. Sorry for the long answer to your question. हाँ, तो but obviously things were very different, and they did not really work out very well between me and the founder, so the CEO of Unacademy. We did not get along very well, I think. And then I decided हो गया, मतलब it's a good learning. 8 महीने, but those 8 months were really good. I think I learned a lot from my stint in Unacademy. मतलब I learned that part which I would have never. बेचते कैसे यार, मतलब सेल कैसे करते हैं कोर्स, स्केल कैसे करते हैं, स्केल पे कैसे खेलते हैं. 8 महीने में हमने रेवेन्यू काफ़ी बढ़ाया था. रेवेन्यू के बारे में मैंने कभी ज़िंदगी में बात ही नहीं करी थी, सोचा ही नहीं था. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स एंड रेवेन्यूज एंड स्टफ, एंड दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लर्निंग दैट पीपल नीड टू गो थ्रू. वहाँ पे कितने बच्चे पढ़े होंगे इन टोटलिटी ड्यूरिंग योर टाइम? यार नंबर्स मुझे याद नहीं है, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट बिकॉज दे आर नॉट माई फोर्टे. आई रिमेंबर एक कॉलेज का बैच हमने पूरा कराया था. सो देयर वाज अ कॉलेज, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसके पेक, राइट, उसका फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा
730 बच्चे थे. They came and they just gave us because the director knew me very well. Okay. And Dheeraj Sanghi sir, and I reached out to him कि sir हमारा course अच्छा है, and they were also looking because pandemic था, so they were also looking some online partner to do it for them. All right. And we did that, and I think that course went very well. Saket, you know Sanket. Sanket. हाँ, Sanket did that course. Deepak also I think pitched in for a while, but yeah. Okay. So that was one bulk college that we did. I wanted to go and do it with a lot of colleges because I still believe in India, introduction to programming course is broken. But then I think that was also a kind of a disagreement between me and Gaurav because Gaurav wanted कि introduction to programming, उसको college से उतना associate नहीं करना था, and which is fair because उसका brand ही था Unacademy. Unacademy, yeah. Right? And what I bring to the table is lot of my collaboration with colleges. Lot of academy, right? Completely academy. Colleges was Coachship was so much trusted in the colleges in India. Yeah. So this whole so he was not able to leverage my network in colleges in a way because that is where the strength lied. So yeah, वहाँ कुछ ऐसे differences थे. Right. All right. चलो, let's go back a little bit. Yeah. Right. आपने direct time में start किया मुंबई में 2008 में, if I'm not wrong, right? Yeah. And then how did the inception of CodeChef happen? You joined there as a software engineer, right? But then you moved to CodeChef. You I think managerial role में ज़्यादा चले गए rather than software engineering, right? आपने फिर 10-12 साल चलाया, 10-12 साल लीड किया टीम को CodeChef. ठीक है, बोलने चलाया, ठीक है. Right. So like what was the CodeChef story? अगर हम brief में उसके बारे में बात कर पाए तो, like ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था. किसके दिमाग में आया पहले कि इसको करना है, राइट? हाँ, इसकी कहानी भी मैं काफ़ी पहले कॉलेजेस में बताई है मैंने. तो एक्चुअली CodeChef वाज नॉट देयर व्हेन आई जॉइंड डायरेक्ट आई जॉइंड डायरेक्ट आई इन देयर सम वेब प्रेजेंस का बिजनेस था उनका. किसका बिजनेस था? वेब प्रेजेंस का. So they used to they had products which were into, they were selling domain names, web hosting, web infrastructure basically. All right. That was their primary business. DirectAI का starting मैंने सबसे बड़ा DirectAI हुआ था with their web infrastructure business जो उन्होंने EIG को बेच दिया. EIG का full form मुझे नहीं पता. There was a US company which basically bought that business. So I was a part of that. That's how I joined there as a Java developer. And DirectAI जब मैंने join किया था तब DirectAI का जो बार था, हायरिंग बार था, इतना हाई नहीं था. अभी तो हो गया है धीरे-धीरे. अरे उसी के बाद ही हो गया था. मतलब I was very lucky to scrape into the company before the bar went very high. Okay. किस्मत थी. तो DirectAI I joined and मैं हैदराबाद में था. हैदराबाद से बॉम्बे आया था for DirectAI. उसके बाद एक साल के not even एक साल. This was September 2008. 2009 के March April में within 6 months of it. I remember very clearly this incident. So Bhavin once came to the room. Bhavin along with there is a guy called Amit Klein who was the chef actually. उसकी इसी का idea था chef नाम का. अच्छा. He conceptualized उसने ने पूरा वो लेके आया था, the idea of hat, a chef wearing a hat. But what was a chef doing in the office of DirectAI? No, he was not a chef. I mean, okay, he was the idea behind the chef. Got it. और वो खुद जब भी प्रमोशन के लिए जाता था तो वो शेफ वाली हैट पहन के जाता था and all of that. हाँ. So he was the product manager for CodeChef. ठीक है, understood. हाँ, so Bhavin and him came into the room and सबको बोला कि यार कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर तुम सॉल्व करोगे तो पिज्जा मिलेगी. और पिज्जा के लिए इंजीनियर्स उस वक्त कुछ भी करते थे, स्पेशली कॉलेज से. अभी भी कुछ भी कर लेंगे. तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व था. पहली बार हमने CodeChef का इंटरफेस देखा और फिर हमने देखा. एक सेकंड. तो CodeChef ऑलरेडी उन्होंने बना दिया था, प्रोटोटाइप बनाया था और वो चाहते थे कि इसको हम टेस्ट करें अमंग द इंटरनल टीम. ऑलरेडी इंजीनियर्स के पास लाके कि प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, बताओ क्या है, पिज्जा मिलेगा. So that is how it was given to us. So I was not a part of the founding team, as a lot of people say कि यार तुम तो फाउंडर थे CodeChef, क्या ऐसा कुछ था. No, I was not. Okay. फिर जब हम देख रहे थे तो भले ही लोगों को पिज्जा पसंद आ रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि पिज्जा के चक्कर में ये कर रहे हैं. नहीं कि यार ये प्लेटफॉर्म बना दिया, बताया ही नहीं भाविन ने. हाँ, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हम बहुत करते थे ना, मतलब भले ही अच्छा नहीं करते थे लेकिन मन तो था करने का काफी. तो अगर प्लेटफॉर्म बना रहा था तो बताना चाहिए था उससे पहले. तो हम काफी दुखी थे. तो हमने भाविन को जाके बोला कि यार तुम प्लेटफॉर्म बना दिए, हायरिंग करनी थी तो तुम CodeChef से कर लिए, टॉप कोडर से कर लिए होते. उस वक्त इतने सारे प्लेटफॉर्म नहीं थे. There was no Codeforces, there was no HackerRank, there was no HackerEarth. I think there was no LeetCode as well. There was no LeetCode, तो बहुत recent है. हाँ. So there was none of these platforms. There used to be SPOJ, Spoj, right, and there used to be Topcoder. So these were the only two. और एक ACM का, युवा का
प्रॉब्लम आर्काइव हुआ करता था। युवा डॉट जज करके कुछ हाँ युवा डॉट ES ऐसा कुछ था, स्पेनिश का ऑनलाइन जज, यस इट यूज्ड टू बी कॉल्ड ऑनलाइन जज। तो दीज वर द ओनली 2-3 साइट्स जो थे। तो मैं बोला भाविन अगर हायर ही कर, एंड भाविन डायरेक्टाई वाज आल्सो गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन एट दैट टाइम व्हेन दे Bhavin knew that he had to hire people who are smarter than what Directai had at that time. Okay. So he was very conscious about the fact कि उसको तो करने हैं smartest. All right. And Directai had kind of plateaued at a point in terms of talent that existed. So he wanted to go and hire the smarter. Hire ही करना था, कर लेता किसी platform से कर लेता. तो the insight that kind of led on to build this कि स्मार्ट लोगों को हायर करना है। I thought that it was. Okay. But Bhavin did not really say कि ये hiring के लिए बनाया है। Okay. So that is what was going on in your mind कि hiring करना था तो ये कर लिया। और because आपको शायद कुछ actions की वजह से लगा होगा कि hiring के लिए ये बनाया गया है कि यहाँ पे competition करवाएंगे। और जो टैलेंट आएगा वो आएगा, मंथली या व्हाटएवर कॉन्टेस्ट कराएंगे, उसके अंदर जो भी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। That's but it was too expensive an exercise to just hire people to run the whole initiative of this. Correct. And भाविन ने भी काफी ICPC और इन सब चीजों के बारे में गूगल किया था। भाविन himself does not come from an engineering background. So he comes from a BCom, उसने BCom किया है, लेकिन he was a hardcore techie. उसका फर्स्ट प्रोडक्ट उसने खुद ही लिखा था, उसने और उसके भाई ने मिलकर लिखा था। मतलब अपने आप से सेल्फ लर्न करके काफी सीखा। तो एंड ही इज मोर टेकी एट हार्ट देन अ बिजनेस पर्सन। तो वो काफी माइक्रो मैनेज करता है अपनी टेक टीम्स को, करता था, अब नहीं करता है, बट ही यूज्ड टू माइक्रो मैनेज अ लॉट। तो देन ही वाज लाइक कि नहीं, व्हेन सो हमने कभी बताया होगा उसे ICPC में पासिंग इसकी, तुम ICPC के जनता को भी हायर कर सकते हो व्हेन ही सेड कि हाईएस्ट हायर करना है, वर्ल्ड फाइनलिस्ट्स को या फिर जो भी इंडिया से रिप्रेजेंट करता है, गुड रैंक्स इन इंडिया रीजनल एटलीस्ट। हाँ, क्योंकि मुझे याद है पहले हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था कि IITs जाने को छोड़ के और क्या कर सकते हैं टू हायर गुड टैलेंट, तो हमने ICPC बताया होगा उसे। तो उसने गूगल करा और फिर देखा कि भाई इंडिया का जो हाल है ICPC में, वी हैव नॉट बीन ट्रेडिशनली डूइंग गुड। तो उसने बोला देख ट्राई करते हैं, टैलेंट पूल को थोड़ा बेटर बनाते हैं, मतलब एक और उसको लगा था कि अगर हम मैंने उसका रैशनल ये था कि अगर कंपटीशन बनाते तो गेमिफाई हो गया एंड फन में फिर अपने आप स्केल हो जाएगा। ओके, और उस टाइम पे आप बोल रहे हो कि टॉप कोडर था, बट इट वाज लाइक दैट एरा इन लेट्स से DSA / कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कि इनोवेशन आ रहा है कि अच्छा इस तरीके से कॉन्टेस्ट बना के किया जा सकता है, बिकॉज नाउ तो दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट डिकेड और सो, लाइक अब तो मतलब देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, द पॉइंट इज कि कोई इनोवेशन नहीं हुआ है उसके बाद इस बड़ा फील कि भाई कॉन्टेस्ट में जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ हटके नहीं आया है। तो दैट वाज द पॉइंट इन टाइम जब ये हटके एक चीज आई थी, नहीं कि अच्छा ऐसा बहुत हटके तो आई थी कि नहीं मुझे पता नहीं, बिकॉज कॉन्टेस्ट्स तो थे, टॉप कोडर था, हाँ ओके है ना, टॉप कोडर तो हुआ ही करता था। टॉप कोडर की काफी इज्जत, आज जो कोड फोर्सेस की इज्जत है वो टॉप कोडर की इज्जत हुआ करती थी। मतलब इफ यू आर अ येलो ऑन टॉप कोडर यू आर लाइक रियली गुड। रेड तो बहुत कम। आई हैव हर्ड अबाउट दिस फ्रॉम अ कपल ऑफ अदर पीपल एज वेल। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस founder known as Prasanna Sankar. I know he was a top coder red from India. That right. Top coder की बहुत अच्छी reputation थी at that time. Yeah. इनफैक्ट हमने प्रॉब्लम सेटर्स जब पहली बार लेके आए थे तो मैंने टॉप कोडर का डेटा ही स्क्रैप करके उनको कोल्ड ईमेल किया था कि तो यार तो टॉप कोडर से पूछ के था हमने। हाँ, टॉप कोडर से पूछ तो क्या ही किया था, दीज आर ऑल फ्रीलांसर्स राइट, दे आर नॉट करेक्ट फुल टाइम वर्किंग फॉर देम। तो हमने उनको रीच आउट किया था एक एंड 2 people responded, आई रिमेंबर फर्स्ट कॉन्टेस्ट में हमने ऐसा किया था, बट एनीवे तो थैंक्स यार पानी के लिए। सो वेयर वर वी, हम यहाँ पे थे कि हाउ डिड इंसेप्शन ऑफ कोड शेफ हैपन, आप उसकी स्टोरी बता रहे थे कि हाँ, तो भाविन को जब ICPC के बारे में पता चला कि वी आर ट्रेडिशनली नॉट डूइंग गुड, तो ही सेड कि लेट्स जेन्युइनली मेक एन अटेम्प्ट टू फिक्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग जो गैप है इंडिया में। प्रोग्रामर्स को कंपटीशन देते हैं और काफी प्राइजेस वाइजेस भी दी शुरुआत में हमने, मतलब ऑब्सीन अमाउंट ऑफ प्राइजेस देते थे हम। ओके हाँ, क्या मतलब आईफोन गिफ्ट कर देते थे उस वक्त? तो आईफोन इंडिया में उतना था ही नहीं, पॉपुलर ही नहीं था। आई थिंक आईफोन 5 के बाद तो हम बड़े गैजेट्स, ये जो भी फैंसी गैजेट्स हुआ करते थे वो सब देते थे। PS3 या जो भी हुआ उस सब तरह का। आईफोन से कम भी नहीं है अगर आप PS3 दे रहे हो तो। हाँ, मतलब इन दैट लेवल वेरी गुड प्राइजेस। तो हर कॉन्टेस्ट में PS3 हाँ, और फिर हमने देखा कि सेम बच्चों को मतलब इतने सारे PS3 लेके वो करेंगे और क्योंकि जीतते हमेशा वो 2 या 3 थे। तो मैंने जब कोड शेफ में आया तो मैंने काफी ये सब सारी प्राइसेस बंद कर दी। तो मान लो जैसे आपने बताया, ये हुआ कि चलो कोड शेफ का आपको बताया गया कि टीम में आके की करते हैं, एंड देन प्रोबेबली
प्रोटोटाइप को थोड़ा और बेटर किया होगा, put it out there for the हाँ, but I was world. still not a part of the team. Right, when like So I joined the team after 6 months. मेरा जो उस वक्त का मैनेजर था, I remember संदीप, वो आके बोलता है कि यार भाविन बोल रहा है कि you need to move to the CodeChef team. कुछ वहाँ इश्यूज आ रहे हैं जो फिक्स करने हैं. okay, एंड मुझे पता था कि उन इश्यूज को फिक्स करना मुझे आता ही नहीं है. तो मेरा मैनेजर मतलब मुझे झूठ बोल रहा था, उसको या तो मैं चाहिए नहीं था अपनी टीम में, ही वांटेड मी टू जस्ट ऑफलोड टू सम अदर टीम, इसलिए बोल रहा था शायद कि जाना. बट दीज आर ऑल माय स्पेकुलेशन, राइट? यू डोंट नो व्हाट वाज द ट्रूथ. बट एनीवे, तो भाविन वांटेड कि मैं 6 महीने जाऊं, वो चीज़ें फिक्स कर दूं. बेसिकली काफ़ी कुछ लोग डॉस अटैक करते थे कभी कुछ, और मैंने कभी वेब पे उतना काम किया नहीं था. मेरा काम सारा मेरी प्रीवियस कंपनी में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे था. वी यूज्ड टू बिल्ड ट्रेडिंग टर्मिनल्स फॉर द स्टॉक मार्केट. तो मुझे वेब आता ही नहीं था कि रिक्वेस्ट मैंने सर्वर से पुल करना होता है, ये मुझे पता ही नहीं था. ये मेरे लिए एक नया पैराडिम था. okay, तो अब सिन अटैक जब पहली बार CodeChef में अटैक हुआ था, जब आफ्टर आई वेंट इन द टीम, तो मुझे गूगल करना पड़ा ये सिन अटैक होता क्या है. okay. एंड दिस इज हाउ वी लर्नड एक्चुअली बाय फकिंग अप कंटिन्यूअसली. Still continuing to do so. That is why it feels Personal, so deeply personal now. time कि हो गया, अब so इतने now- टाइम के बाद तो नहीं होना चाहिए था, Understood. है ना? तो हर बार कुछ फटता था, फिर हम उसका फिक्स करते थे, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और फटता था, फिर हम उसको फिक्स करते थे. दैट इज हाउ CodeChef 12 साल में खड़ा हुआ, फिक्स करते करते करते. ऐसा नहीं था कि वी डिजाइन्ड अ परफेक्ट सिस्टम, ग्रेट प्रोडक्ट. आई डोंट थिंक CodeChef वाज एवर अ ग्रेट प्रोडक्ट. CodeChef के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए जो उनसे बेहतर हो गए. Code Forces. हाँ, Codeforces for simplicity. For design, there are other platforms which are better. HackerRank had a great interface, right? But what made CodeChef great was, I think, the problem set, the community, and the fact that people contributed so much to it. Problem set भी अगर देखा जाए तो I don't take any credit for building those problem set. मतलब मेरी तो औकात भी नहीं थी वो problems बनाने की. It's the whole community that came together कि हाँ चलो बनाते हैं. और उनको जो हम पैसे भी देते थे, that was not equivalent to what they would actually get in the market for what they were building. HackerRank paid a lot as far as I know. हाँ, उस वक्त शायद they used to pay more than what we did. Why they still did it? Because उनको thrill आता था कि इतने सारे लोग participate करेंगे. Right. So it was that kind of a thing, right? तो आपने 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद मैंने join किया. I think उससे पहले मेरे को आपने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई थी. हाँ, गौरव मुंजाल used to be your reportee, right? He used to report to you for 3 months. for 3 months. हाँ, तो गौरव का first, हाँ, that's an interesting thing. तो गौरव का first job was at an academy, Direct Eye. Direct Eye. हाँ, so उसकी इनफैक्ट गौरव was a recruitee. मैंने गौरव को रिक्रूट किया था through CodeChef. अच्छा. That's why Gaurav has very deep, high regards for CodeChef. अच्छा, तो he joined Direct Eye in the CodeChef team. हाँ, नहीं, he did अच्छा. not join Direct Eye in CodeChef team. Because He joined in a Media.net Because आप team. CodeChef में थे ना, इसलिए मैं. No, he did not join the CodeChef अच्छा. team first. Okay. He joined in the Media.net team. Okay. But towards the end of his tenure, last 3 months, he came in the CodeChef team. All right. जो हमने CodeChef for Schools launch मैंने किया था, this was 2014. ठीक है. तब he did a lot of, उसने काफी कुछ सिखाया था कि पब्लिसिटी होती कैसे है. अच्छा. हमने एक छोटा सा इवेंट किया था in the canteen of Direct Eye. Okay. And he got the free charge CEO, he got Haptic का CEO, 3 people at that time when he was a fresher. अच्छा. तो उस हाँ, इवेंट में he got 3 people to कुणाल come. शाह, हाँ, free charge CEO, हाँ, must have been कुणाल हाँ, शाह, right? हाँ. And दूसरा मेरे को नहीं पता. हाँ, Haptic का CEO and another person. 3 people were there in a Direct Eye का जो कैफेटेरिया है, not a canteen, cafeteria. काफी अच्छा है वैसे भी. In Mumbai. He was that well connected from then. He has been a hustler. He has generally been very good at this sales. और मुझे मतलब मेरे मिडिल क्लास जीन्स सेल्स हमेशा बुरा होता है ये सिखा के आया है, तो मुझे लगता था यार ये तो खराब चीज़ है. बट है मतलब आई एम सो गौरव हेल्प्ड अस अ लॉट इन टर्म्स ऑफ काइंड ऑफ स्केलिंग अप CodeChef इन अ वे कि आप आउटरीच बढ़ाओ, ऐसे बढ़ा सकते हो, ये कर सकते हो. इवन एट दैट टाइम व्हेन ही वाज जस्ट लाइक अ फ्रेशर. मतलब आपका जो पर्पस था कि अवेयरनेस बढ़ाना है. हाँ, तो इन दैट सेंस ही हेल्प. आई थिंक बिकॉज big, getting big names into an event obviously attracts more people to come to that particular event. So he was I was his boss in 2014 and then he was my boss in 2021. Yeah, start of 2021. That was also an interesting phase. And to be honest, मतलब मेरी गौरव के साथ बहुत अच्छी relationship नहीं थी when he was in CodeChef. When he was in CodeChef. अच्छा, स्टार्टिंग में मतलब अच्छी रिलेशनशिप मतलब खराब भी नहीं थी. इट वाज जस्ट दैट वी वर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, राइट? एंड मिडिल क्लास जीन्स फ्री चीज है. दैट, सो इट वाज मोर टू, देयर वाज नथिंग रॉन्ग
in what he did, to be very honest, in the 3 months. मतलब क्या ही आप wrong कर लोगे being a fresher in 3 months for a team जब आप ये देख रहे हो. नहीं, कोड बेस डिलीट कर सकते हैं. नहीं यार, ethics के मामले में तो I don't think there was. I am not saying कि he would have done that, but मैं एग्जांपल दे रहा नहीं, हूँ. मैं गलत बता करने रहा को हूँ, बहुत कुछ कर सकते ethics के मामले में तो I don't think there was ever any issue. तो फिर ये हुआ, and then that was one of the reasons why I was not very happy when I heard that an academy acquired CodeChef. Right. हाँ, so that was Then the you knew reason. कि the tables are going to turn now. No, I was not so worried about tables being turned, to be honest. मतलब it was more about equation कैसा बैठेगा, है ना? So now will we become again completely salesy thing from being a non-profit or something like that? तो वो सारा चीज़ थे doubts. Right. हाँ, but anyway, so we were at yeah, CodeChef story पे थे, तो हाँ. I'll maybe ask a couple of questions that I had in हाँ, mind for sure. regarding CodeChef. हाँ. You seem to believe, हाँ, correct me if I am wrong, हाँ, with whatever conversations I've had with you, हम्म, कि a good competitive programmer or competitive programming is important for someone to be a good software developer. आप हम्म, उसको एक यूनियन की तरह देखते हो. I don't know what the right word is, but you see कि it is like very correlated to each other is what you seem to think so. But why do you think so? मतलब I just want to talk about this, maybe a friendly debate या कुछ. हाँ, बिल्कुल कर हाँ, सकते तो हैं उसके यार, मतलब डिस्कस करना है कि हाँ, मैं बहुत सारी कॉलेजेस में भी गया हूँ और ये सवाल मुझसे हमेशा पूछा गया है कि यार सर हमें सीपी करनी चाहिए या फिर हमें ओपन सोर्स करना चाहिए या फिर हमें वेब डेव करना चाहिए, है ना? सीपी वर्सेस वेब डेव इज अ वेरी कॉमन डिबेट इन answered by CodeChef's ex-CEO. हाँ, नॉट अ सीईओ तो नहीं था यार मैं. हाँ, तो ठीक है जो भी. सीपी वर्सेस वेब डेवलपमेंट की बहुत बड़ी डिबेट है और मुझे नहीं पता ये डिबेट क्यों है. मुझे तो लगता ही नहीं कोई वर्सेस है. दे आर बोथ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. मतलब अगर आपको कुछ बिल्ड करना है तो आपको वेब डेवलपमेंट आना ही चाहिए. अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर करना है, अब सीपी को भी ना बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाता है. मतलब डिपेंड्स ऑन विच सर्कल यू आर टॉकिंग. तो अब तेरी सर्कल में मैं लोगों से सीपी के बारे में बात करूंगा. जो लोग ऑलरेडी सीपी में एक सर्टेन लेवल अचीव कर चुके हैं, उनके लिए सीपी बिकम्स कि यार ऑलरेडी सब कुछ आ गया, आपको सेगमेंट्री सब आ गया. अब इट्स अबाउट मोर ऑप्टिमाइजेशन इन अ शॉर्ट कॉन्टेस्ट कि आप कितना उसमें एक्सेल कर सको, जिसको स्पोर्ट की तरह कितना ले सको. करेक्ट है ना? तो लेकिन सीपी आज भी, जैसे मुझे एक कॉलेज के वाइस चांसलर ने बोला यार एक सीपी का कोर्स करना है, 1 क्रेडिट कोर्स करना है किसी हमारे बच्चों के लिए. तो मैंने उनसे पूछा सर क्या पढ़ाना है, तो वो बोल रहे सर वो बोले उनको एक लैंग्वेज आती है और उनको बेसिकली प्लेटफॉर्म से इंट्रोडक्शन करना है. तो सीपी का तो देख कितना बड़ा वेरिएशन है. मतलब इट्स अबाउट यूजिंग एन ऑनलाइन जज वर्सेस बिकमिंग अ हार्डकोर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर. तो आई एम नॉट, व्हेन यू से कि इज बिकमिंग अ हार्डकोर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर वेरी एसेंशियल फॉर बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई विल नॉट से. बिल्कुल जरूरत नहीं है यार. मतलब इसके बिना तुम जिंदगी में आराम से सर्वाइव कर सकते हो. लेकिन क्या तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं आना चाहिए? क्या तुम्हें एल्गोरिथम्स नहीं आना चाहिए? क्या तुम्हें डिस्क्रीट मैथ नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए. तो ये तीनों जानना, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स तो बिल्कुल. हाँ, ये तीनों जान. हाँ, सेगमेंट्री भले ही ना आए, मतलब ठीक है, इट्स ऑल राइट, बट आएगा तो नुकसान नहीं है. अगर आप स्केलेबल सिस्टम्स लिख रहे हो, अगर आप जेन्युइनली लार्ज स्केल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो डेटा स्ट्रक्चर्स आपको, इवन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स भी काम आएंगे. भले ही नेसेसरी ना हो, आप उस वक्त भी सीख सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको सीख के ही वहां जाना है. But should you not know data structure? Should you not know algorithm? Should you not know discrete maths to become a good software engineer? My say is yes, you should. ठीक है, it will make you a better software engineer. Can you not become a software engineer without knowing this? Yes, you can. India में 15 लाख software engineers हैं यार. मतलब किनको आता है? Hardly 5% को भी नहीं आता होगा, है ना? तो है, लेकिन it's about whether you bring more quality to the table. If you are a better competitive programmer, I think if I have to hire people, if I today, मतलब I'm not saying this is how everybody has to do it. If I have to hire today, a good CP score definitely tells me about the capability of a person to learn and code, but that is not sufficient. That if I'm only, it is a good first benchmark for cutoff. It is a necessary condition for you, but it is not sufficient condition yes. for you. हाँ, मतलब बोलोगे यार मैंने वेब डेवलपमेंट मुझे करना ही नहीं है, वो आपको पहले एक ओपन सोर्स करना ही नहीं है ना? मतलब तब तो नहीं होगा ना, वर्सेस नहीं है. हाँ, so that's my take. अब बता इसमें डिबेट कर. नहीं, I understand. मेरे को देखिए पॉइंट यही है ना कि जब भी आप एक ऑडियंस को आके सीपी के बारे में ऐसा बोलते हो, तो या फिर आईसीपीसी के बारे में ऐसा बोलते हो, तो आईसीपीसी में तो दूसरा ही क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, as far as I remember. नहीं, ऐसा नहीं है. मे बी उस टाइम पे होता होगा फिर शायद. हाँ, मेरे जमाने में आईसीपीसी में 6 प्रॉब्लम आती थी और 6 की 6 ग्राफ प्रॉब्लम्स होती थी.
तभी तो मैं दो में एक करके, अभी तो केक वाक आने लगी है। हाँ पहले इजी कम से कम आप जाके खाता तो खोल सकते हो। करेक्ट, पहला तो इजी आता है। वो इवोल्यूशन है। राइट, दैट इज व्हाट आई काइंड ऑफ गॉड फ्रॉम व्हेनेवर यू हैव सेड दिस कि अगर आप आईसीपीसी को इतना प्रमोट कर रहे हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आईसीपीसी में तो पार्टिसिपेट करो ही एंड ऑल दैट, तो दैट इज लाइक समबडी that is like, you know, pushing someone or, you know, motivating someone to become a hardcore CPR is what I feel. अगर आपको basic TSA ही सीखना है तो you don't need to go on platforms like CodeChef or CodeForces for that matter. LeetCode is a better fit in my opinion. कर ले LeetCode, कर ले यार, मतलब मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि LeetCode मत करो, CodeChef ही करना है तुम्हें, मैं नहीं बोल रहा। नहीं, but generally there is a ICPC के लिए ICPC अगर कोई करे तो there is a larger incentive, right? There is a path where I can say कि हाँ करो, मतलब तुम्हें आईसीपीसी में अगर जाओगे तो अवेयरनेस तो बढ़ेगी। आज इंडिया में तो देख लेना कितने बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, 10 लाख तो होंगे कम से कम। 10 लाख नहीं, 10 लाख एक साल में होते हैं। हाँ, एक साल की बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, अगर 4 साल मिला ले तो इतने सारे बच्चे हैं। ओके, अब आई ट्राई टू रिलेट इट हाउ आई गॉट टू नो अबाउट सीपी एंड एवरीथिंग, राइट? मैं तो सीपी बहुत ज्यादा कर नहीं रहा था, मैं तो आईसीपीसी ऐसे तुक्के से चले गया था आईआईटी ढूंढते वक्त। दैट हैड अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन माय लाइफ। अच्छा, कि आप रीजनल्स में वहां पे गए, यू मेट लाइक हंड्रेड्स ऑफ, पता चला ना यार ये होती है, मतलब देयर इज समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। ऑलराइट, आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट मोर देन 150 कॉलेजेस इन इंडिया। द अवेयरनेस दैट सच प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट, अब भले ही तुझे लगता है कि हाँ हर कॉलेज में पता होगा कि CodeChef क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज भी जाएगा, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बिल्कुल नहीं यूज करते किसी भी ऑनलाइन जज को या फिर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स को। देयर आर मेनी सच कॉलेजेस, देयर आर मोर देन 3000 कॉलेजेस इन इंडिया, ओके, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एंड लॉट ऑफ देम डोंट नो, लॉट ऑफ देम। तो हर कोई से मैं थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार आप जाके एकदम टॉप रेटेड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बन जाओगे और वो निकल जाओगे, लेकिन इस जो टूल्स अवेलेबल है उसको यूज तो करो। एंड सीपी, इफ यू लुक एट इट, द होल टूल सिस्टम, इट हेल्प्स द एकेडमिक, द टीचर्स अ लॉट। आज भी बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे टीचर्स हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो वेयर इवैल्यूएशंस आर एक्चुअली इवैल्यूएटेड। जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो आप मैनुअली इवैल्यूएट करते हैं। टीचर्स जाके आज भी टेस्ट केस एंटर करते हैं प्रोग्राम चेक करने के लिए कि वो सही है कि गलत है। अच्छा, एंड देयर विल बी मेनी सच कॉलेजेस इन इंडिया। आई अंडरस्टैंड दैट, बट जब हम किसी न्यूबी को बात करते हैं ना सीपी की, तो अकॉर्डिंग टू व्हाट माय एक्सपीरियंस हैज बीन कि लोग डीएसए और सीपी को दो अलग-अलग चीजों की तरह देखते हैं, ये भी है, व्हिच दे शुड नॉट। करेक्ट। और डीएसए, मतलब मैं भी यही जवाब देता हूँ कि यार सीपी में भी कोई आपसे आगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़ी पूछ रहा है, क्वेश्चंस तो वो भी डीएसए की ही हैं। इट्स जस्ट दैट कि मोर ऑफन देन नॉट जब भी कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कॉन्टेस्ट होता है उसमें डिफिकल्टी लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स प्रोबेबली थोड़ा हायर होता होगा इन कंपैरिजन टू जब आप किसी जॉब में इंटरव्यू देने जाते हो। तो आई गिव दिस एनालॉजी आल्सो कि अगर आपके कॉलेज के डीएसए के एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स के बराबर हैं तो मे बी जो कंपनीज में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर जेईई मेन, एंड जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सवाल आते हैं मे बी दे आर जेईई एडवांस्ड। तो व्हाट आई फील इज कि जेईई एडवांस्ड इज अ गुड थिंग टू प्रिपेयर फॉर इफ यू आर एमिंग फॉर जेईई मेन। मैं बिल्कुल कभी नहीं कहता कि यार तुम्हें रेड कोडर बनना है टू यू नो टू सक्सीड इन लाइफ। मैं तो ये बिल्कुल कभी नहीं कहा। मैंने कहा तुम 3 स्टार बन जाओ यार CodeChef में। ओके, मैंने इफ यू आर 3 स्टार ऑन CodeChef, इवन आई बिलीव यू कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो आप मतलब जो आपको करनी होती है, एंड इट कवर्स 90% ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ओके, सो इस बीच में यू नो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चलो इंपॉर्टेंट है, वी डिस्कस दैट एंड ऑल। CodeChef पे यू हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू वर वर्किंग क्लोजली, is it fair to say, with like Bhavin Turakia? Initially yes, but no, not for the period of 10 years, but how you have worked closely probably for a period of 6 months or so initially. Shuru mein to I was a part of a team where he would micromanage a lot of iterations. Yeah. Okay. Yeah. So the question that I wanted to ask is, I have heard that I've heard him say in a podcast that anything that he has to repeat over 3 times in his life usually has a protocol document. Have you been handed a bunch of protocol documents? No, I have not been handed a bunch of protocol documents, but I know that he is that kind of a person. Okay. Yeah. Okay. So like any positive things or any learnings or anything that you may have observed about him that people can take away something from? He's a good entrepreneur. Matlab he is he's very meticulous about what he does. He's very articulate. He's also he runs Directai in a very how would I say, काफी छूट देता है लोगों को करने की चीजें, और मे बी इन अ वेरी एक्सपेरिमेंटल वे अगर छूट देते हैं। एक्सपेरिमेंटल तो है, मतलब Directai ने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। आई थिंक जितना लिबर्टी Directai के डेवलपर्स को मिलती है और जितनी, एंड ही इज अ वेरी
टेक फेवरिंग पीपल, मतलब जो उनके टेक्नोलॉजी के बंदे होते थे, दे वुड ऑलवेज बी फेवर्ड ओवर अदर डिपार्टमेंट्स. सो what I am saying probably is not true for a lot of other people who were not Okay. technology Okay. folks. So he was biased towards technology people is what I think. Direct Eye was also a very tech heavy company, and that's probably because he himself is a techie. All right. Yeah. Got it. तो उसके बाद like of course I think Unacademy में जब आप काम कर रहे थे, I think you're not that great on titles and all, but you were working as a VP there. VP was a title that was given to you, right? So you already told कि the equation was not very good with great Gaurav. with Gaurav and all. So like my question to you is, why do you think the competitive programming category of Unacademy not work out? Like it is not there anymore, right? After a couple of years, it was like in a very slow mode, and then it eventually shut off. Like, do you have it? I know you left before, but yeah, I left in 21 April. Right. Till that time, it was growing. All right. It was, if we talk of numbers, I think it was doing pretty well. मुझे याद नहीं है numbers, but काफ़ी अच्छा कर रहा था. And क्यों हटा दिया ये मुझे नहीं पता, because I stopped mending into what was happening there. Okay. मैंने अंदर ज़्यादा पूछा नहीं. I think Unacademy has been a company which runs on a lot of much faster and quicker experiments. Okay. Gaurav has always consistently done this. And he runs very expensive experiments also. Okay. उसको प्रॉब्लम नहीं है. Okay. और वो खुद बोलता भी है कि मुझे प्रोडक्ट आता है, मार्केटिंग आती है, तो मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, जहाँ प्रोडक्ट मार्केट फिट मिलेगा उस पर आगे खेलूँगा. So, and that is how he has been running an academy. So that's his way of approaching. All right. And he has been quite successful at what he is doing. Okay. Okay. So like there is a possibility, according to what you are telling me, कि उनको यहाँ पे product market fit नहीं मिला होगा. शायद जितना उसको expectation था कि ये grow करेगा या जिस तरह से काम करेगा वैसे नहीं किया होगा. Right. Or maybe he wanted to launch more courses on using the CodeChef audience, and he did not get the kind of response that he expected to get from the CodeChef audience. The initial courses से नहीं मिला होगा तभी. और because CP was not just what he wanted. CP was something that I wanted. वो बड़ा niche. CP तो मेरा field था. But और CP के basis पे भी if you look at what we were teaching was not very hardcore, because hardcore तो niche है, उसमें कौन सीखने आएगा पैसे देके आपको, वो तो already capable है खुद से सीखने के लिए, है ना. तो what we were building was CP नाम था, but we were teaching more fundamentals of computer मतलब programming. That was not a good position to be in sales wise, right? If you will agree with me, अगर आप पढ़ा बेसिक ही रहे हो, but then your marketing is it has a niche, तो लोग पहले ही डर जाएंगे कि यार ये तो CP पढ़ा रहे हैं, मेरे को तो बेसिक्स नहीं आते हैं. सोचा नहीं था मैंने इसके बारे में. अभी सोच रहे हैं पहली बार. हाँ, तू पूछ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ. कभी किसी ने पूछा नहीं है. राइट. तो अगर DSA पढ़ा रहे हैं तो DSA की तरह ही मार्केट हो तो it will attract more eyeballs is what I feel. Probably I'm not a good salesman. So probably yeah. Okay. Understood. Understood. Recently, like I think you have been on a short or long, I don't know. You have been on a break, right? You have traveled, right? So like have you in this time ever thought कि कुछ और प्लेटफॉर्म बनाते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को लेके have you thought of like what different can be done, right? Like competitive programming or for a more generalized word maybe DSA. नहीं यार, to be honest, after I left CodeChef पूरा competitive programming से मैंने संन्यास ले लिया. Okay. हाँ, मुझे तो बिल्कुल वापस आना ही नहीं था. Okay. And I never thought, the thought also did not come कि मुझे competitive programming में कुछ करना है. मतलब whatever I was thinking was कि figure out कर लेंगे क्या करना है, but not competitive programming. ऐसा नहीं था कि नहीं जाना है, but हो गया था कि हो गया. But then फिर नाना करते आप आ ही गए वापस. Yeah, that's because ICP, the whole ICP. You are a strategic advisor to ICPC India, right? If I'm not wrong. Correct. Yeah, please go on. That's a designation that I asked for because it helps me to talk to a lot of people to help ICPC India. Right. Yes, I have that position, but it's more of a voluntary thing that I'm doing. Okay. And also because of the whole story that I told you, right? I'm still kind of emotionally connected to it. Got it. And now, if you ask me whether I want to build a platform, I don't think we need a platform. I may end up building it. Building तो खुद से scratch से तो कुछ करूँगा नहीं. I मतलब इधर-उधर से open source. Dom Judge is already there. मतलब even though whatever happened yesterday, but I think it is a very good piece of software and we can use this. Or there are tons of other softwares. One Judge करके एक है. बहुत सारे हैं. So we can use something. The idea is to bring the community together. मैं काफ़ी disappointed हुआ था when I saw the numbers.
मैं जब वर्ल्ड फाइनल्स में गया इस बार, आई काइंड ऑफ सेल्फ इन्वाइटेड माई सेल्फ टू गो देयर. मैंने फाल्गुनी सर को बोला कि सर मैं आपके लिए मैं हेल्प करूँगा, लेकिन आपको मुझे वर्ल्ड फाइनल्स में एक इन्विटेशन भेजनी है. आई वॉन्ट टू अटेंड इट. मुझे देखना है यार, मतलब इतने 3 साल से मैं गया नहीं हूँ. आई वॉन्ट टू बी देयर. तो वहाँ जब मैं गया तो RCDs की जो मीटिंग हो रही थी उसमें मैंने नंबर सुने कि लास्ट ईयर इंडिया का क्या पार्ट है. एंड आई हैड कम्प्लीटली लाइक लॉस्ट टच. मैंने खोल के भी नहीं देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ओके. फिर देखा कि इंडिया से लास्ट ईयर 2000 टीम्स पार्टिसिपेट करी थी. एंड आई रिमेंबर्ड वेगली कि जो लास्ट कॉन्टेस्ट हमने कोडशेफ पे कराया था, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट जो हमारा कल हुआ, जब हमने कोडशेफ में कराया था 2019 में, बिफोर पैंडमिक, दैट वाज द लास्ट कॉन्टेस्ट. उसमें 4401 टीम आई थी. ये मुझे वेगली 4401 नहीं पता था, वो तो मैंने अभी जाके वापस वेरीफाई किया. आई पार्टिसिपेटेड इन दैट कॉन्टेस्ट 2019 राइट, जस्ट बिफोर कोविड. हाँ उसमें भी फक हुआ था, एक प्रॉब्लम गलत थी. हाँ हो सकता है बिल्कुल. फकअप्स के तो हम किंग्स थे, बट एनीवे नॉट इन अ वेरी प्राउड वे. बट तो 4000 से ज़्यादा टीम्स आई थी, मुझे इतना पता था. और जब 2000 आ गई इस बार सुना तो मुझे लगा यार ये तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था. मतलब कि नहीं, बट अभी तो आपने 3000 बताया ना ICPC में. तो 2000 लास्ट ईयर आई थी. अच्छा, लास्ट ईयर आई थी. ओके. हाँ. एंड बांग्लादेश से जनरली बांग्लादेश हैड 2500 टीम्स. तो वो 2000 कैसे हो सकता है, गलत होगा कुछ. एंड देन आई एक्चुअली वेंट एंड चेक. और मुझे लगा, मैं अपने आप को डाउट करने लगा कि 4000 शायद नहीं होंगी, कम होंगी. फिर मैंने जाके चेक किया, इट वाज एक्चुअली 4400. और उसमें कुछ स्कूल टीम्स भी थी, क्योंकि हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था ICPC फॉर स्कूल्स करके. तो हम क्या करते थे, स्कूल के बच्चों को भी ICPC में बुलाते थे ताकि उनको दिखे कि ICPC होता क्या है. ऑलराइट. So that because it's to me even today it is the biggest it's a festival of programming, and the more exposure students get in their school, probably they can get more inspired. तो उसमें कुछ स्कूल टीम्स थी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं थी, वो 100 के आसपास होंगी. चलो फिर भी 4000 से ऊपर थे मतलब. हाँ. और अब 2000 आ गया तो मुझे ये भी बहुत बुरा लगा. फिर मैंने जब वंस आई फेल्ट कि डॉम जज को हमने इनफ स्टेबल कर लिया है, देन आई स्टार्टेड जंपिंग इनटू कि अब आउटरीच बढ़ाते हैं. Then I reached out to some of your friends in the community कि यार जो YouTube और इन सब में काफ़ी पॉपुलर हैं कि यार थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, पोस्ट करते हैं. एंड लॉट ऑफ पीपल हेल्प्ड. प्रियांश ने पोस्ट डाला. हाँ और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पोस्ट डाला. एंड अर्श ने पोस्ट डाला. एंड दैट फिर मैंने कोडशेफ को रिक्वेस्ट किया कि यार एक पोस्ट डालते हैं. एंड दे वेरी हैप्पीली अग्रीड. तो उन्होंने अपने कॉन्टेस्ट पे पोस्ट डाला, गीक्स फॉर गीक्स, एंड वो हो गया. तो रजिस्ट्रेशन बढ़े लास्ट मोमेंट में, काफ़ी रजिस्ट्रेशन बढ़ के वो 3000 फिर ऐसे आए. तो टोटल 4000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हैं, बट यूनिक टीम्स 3000 हैं. ओके. सो थोड़े बढ़े, मतलब दैट ऑब्वियसली मैंने अपनी खुद की ही स्क्रू करा ली टेक्निकली. मतलब अगर टीम्स नहीं होती तो शायद राइट ऐसा नहीं होता. तो ये डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी था. एंड अब लग रहा है कि मन कर रहा है कि लेट्स बिल्ड द कम्युनिटी अगेन, एंड यू डोंट नीड टू डू इट ऑन योर ओन. मतलब देयर आर इनफ प्लेयर्स इन इंडिया. आज अगर देखो, अगर कोड फोर्सेस हटा दे तो दुनिया के सारे बड़े कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म इंडिया के हैं. इनफैक्ट टॉप कोडर भी विप्रो ने खरीद लिया था. अच्छा. हाँ. एपीरियो अभी पता नहीं क्या है सीन उसका. ओके. तो इफ़ यू लुक एट HackerRank, HackerEarth, CodeChef, इवन टॉप कोडर और मोस्ट ऑफ दीज बिग प्लेटफॉर्म, अब वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं HackerRank, HackerEarth, लेकिन पहले तो करते. दे स्टार्टेड डूइंग इट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ इवन Geeks for Geeks, right? So there are a lot of these platforms which can help build the community together. I don't know how to bring them together, but we will figure out some way. तो मुझे लगता है कि बनना चाहिए कम्युनिटी. एंड इट्स व्हेन आई से अ कम्युनिटी, आई मीन a place जहाँ पे लोग आके और सीख सके. एंड इट डजंट नेसेसरली नीड टू बी जस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज माई टूल टू गेट इट डन. बट व्हेन कम्युनिटी कम्स टुगेदर, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ CP करते हैं. मतलब आई एम श्योर दे डिस्कस 100,000 अदर थिंग्स that they want to. Yeah. So you are saying कि platform is not something which is required, but you do want platforms हैं, मतलब हम somehow bring them together and make a community. But आपको ऐसा लगता है क्या कि मतलब इसमें कुछ और, See, I have no idea कि अभी और क्या किया जा सकता है. मैंने इस पे कभी brainstorm भी नहीं किया. But it's like कि थोड़ा like काफ़ी साल हो गए हैं. सेम चीज़. And this is the thing which has been going on कि हाँ 4-5 क्वेश्चन आ गए, ये करके सॉल्व कर दिए, कुछ पॉइंट्स मिल गए. It is some level of gamification, but मतलब not enough. Of course not enough, because even if you look at it, 90% of the population of engineering population is not really doing this. And either they're not attracted to it, or they find it too hard. Even though there is gamification, it has not been able to get that attention, right? So of course there is not enough. If you want me a solution, I don't have a solution. I've never been an entrepreneur. I've never been a
idea person. I always did what came my way. Courtship also हमने कभी conceptualize तो नहीं किया था कि हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, ये करने वाले हैं ना. भाविन ने कभी मुझे goals दिए थे कि तुम्हें ये drive करना है. One of the reasons why courtship became a very community thing was we were never given any goals. So the goals were kind of decided by community. feature मांगता था हम बना देते थे, community कुछ मांगता था, ऐसे चलता था. Understood. Yeah, I think काफ़ी सारी हमने बातें करी about the competitive programming world, computer science education and all. But otherwise also, you know, I'd just like to add this on somewhat of an ending note कि I find yourself to be an interesting person, a different person. CS education को हटा दो. For example, your Insta bio is don't lose politics over friends. या फिर otherwise also, you know, whatever limited conversation I have had with you, you know, you have had views which are like not matching to 90% or 95% even of the people that I am around. Oh, is it? Okay. Is what I feel. तो कुछ ऐसे आपके views हैं, you know, maybe about computer science education, maybe about something else, you know, we'll just open the table to you कि people don't agree with you but you feel strongly about. I'm not sure if it's good for your podcast or not. That's okay. No. देखिए इतना ऐसा कुछ है नहीं. Don't lose politics over your friends is something that I took a lot of time to arrive at this. मैंने कहीं सुना था मैंने काफ़ी लोग मुझे बोलते थे don't lose your friends over politics. Correct, बिल्कुल. And this is something that I have been told by so many people. I have read so many places that I have gotten so sick of it. तो फिर मैंने बोला यार उल्टा होना चाहिए. Don't lose your politics over your friends. अब politics क्या है? इसमें अगर हम घुसेंगे तो it will probably be another 2-3 podcast का length. मेरे लिए politics is about what you. आपको वापस बुलाएंगे. नहीं. ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले तेरे इसमें तो don't worry. But हाँ, don't lose politics. Politics क्या है? मेरे लिए politics I have learned over a period of time that if you really want to, तो politics को दो तरीके से देख सकते हैं. एक है कि आपके values, माने what is your politics? Your politics is what you believe in. मेरे लिए that is what defines my politics. अब बहुत लोग बोल रहे थे politics वो है कि जो electoral politics आप जाके कर रहे हो. भैया आती है दिमाग में. हाँ. नहीं यार, वो तो एक जरिया है to achieve governance. है ना. पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है. आप आज बैठ के एपॉलिटिकल हो रहे हो, ये भी आपको लगता है कि आप पॉलिटिकल नहीं हो, लेकिन आप पॉलिटिक्स का हिस्सा हो. जो स्टेटस को है वो आपका इस्तेमाल कर रहा है. आप एपॉलिटिकल बन के यहाँ बैठे हो क्योंकि आपकी प्रिविलेज है, आप बैठ सकते हो. बीइंग एपॉलिटिकल is a function of a lot of privilege that we have. People like you and me have. We can choose to be apolitical. Okay. There are so many people in the world who cannot just choose to be apolitical. They have to be a part of the system. All right. So what you mean by that is कि हमें impact नहीं कर रहा है कि who is running the country. That is why we can choose to be apolitical. But there are a lot of sections out there. Lot क्या मतलब पूरा section out there. We are the exceptions. Okay. Middle class को अगर हटा दे, है ना, जो स्ट्रगल कर रहा है अपने रोज के खाने के लिए या फिर रोज के कमाने के लिए. Alright. हम बैठ के यहाँ पॉडकास्ट दे सकते हैं. मतलब ये हमारी प्रिविलेज है. But there are people out there who do not have the access to a lot of very very essential things जो हमें है easily accessible. अच्छा. तो हमें हमेशा पॉलिटिक्स को हेट करना सिखाया गया कि इट्स अ बैड थिंग. अगर प्रोटेस्ट हो रहा है सड़क पे, अगर लोग रास्ता रोक के सब जा रही है, एक प्रोटेस्ट जा रही है, तो हमें लगता था यार ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, ये क्यों कर रहे हैं. हमें हमेशा सिखाया गया कि प्रोटेस्ट करना खराब है, पॉलिटिक्स खराब है, ये सारी चीज़ें खराब है. लेकिन फिर अगर व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग ऑल द रॉन्ग दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, दीज आर द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मीन्स टू रेजिस्ट समथिंग रॉन्ग दैट इज हैपनिंग. बिकॉज एक बार आपने वोट दे दिया, 5 साल में आप कोई अकाउंटेबिलिटी और किसी तरीके से मांग ही नहीं सकते. हाउ व्हाट विल यू डू अपार्ट फ्रॉम प्रोटेस्ट? आप बम फोड़ सकते हो, लेकिन वो तो आप नहीं करना चाहोगे ना. तो वायलेंस के अलावा अगर आपको नॉन वायलेंट वे में कुछ भी करना है, तो जो चीज़ें हमें गलत बताई गई थी, दोज आर द ओनली मीन्स. अब ये हमें टाइम वेस्ट लगता है क्योंकि हमारे पास एक जरिया है हमारे टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके हमारे लिए बेहतर एक्सेसिबिलिटी बनाने का. बहुत सारे लोगों के पास ये जरिया है ही नहीं. उनके पास वही कर सकते हैं. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. दैट्स द ओनली वे टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी. तो पॉलिटिक्स में अगर हम पॉलिटिक्स को खराब बोल दें या फिर उसको डिसोन कर दें, तो स्टेटस को चलता रहेगा. हमें लगेगा कि हाँ हम तो एपॉलिटिकल है, लेकिन हम एपॉलिटिकल नहीं रहेंगे. हम तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो पावर में. बाय नॉट टेकिंग पार्ट इन अ वॉर or any kind of a conflict situation, you are helping the person or the who is without your who is in power, who is more powerful. All right. So
और last decade में I have actually unfriended a lot of people over my politics. Okay. Yeah, मतलब I don't subscribe to a certain brand of politics that they subscribe to, and I have literally बहुत बार तो मेरे रिश्तेदारों के साथ भी हुआ है. I have like stopped communicating with them. Sorry, not happening. काफी बार तो मैं घर बहुत कम जाने लगा हूँ. Okay. All right. I think that is enough for the audience today. I don't know if Yeah, they're it's a ready for totally more. different chapter. So I it's better you don't go there in your podcast, Yeah. or you can edit it out. So yeah, I think this was all that I had to ask. Thank you so much for coming. Thank you. Yeah. Thank you for having me here and asking these interesting questions and listening me patiently for so long.